الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کو اگر غور سے دیکھا جائے اور کفر کے غلبے کو اگر حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھا جائے تو اس کی حقیقت یہی نظر آئے گی کہ مسلمانوں کی ذلت اور اس کی پستی کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ فشل، بزدلی، نامردی، شکست، یہ سب چیزوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنا اور بکھر جانا، متفرق ہو جانا، جدا جدا ہو جانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، اتنے فرقے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے، بے شمار فرقے ہیں۔ تو اتنے فرقوں کے اتحاد کی کیا صورت ہے؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کا بھی کمال، اللہ پاک نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ فرمایا ان لوگوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر فرقہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی میں خوش ہے، کتنا بھی وہ نکما کام کر رہے ہوں، کتنے غلط راستے پہ ہوں، اس پہ خوش ہے۔ کہتے ہیں ہم پورا ایک سیر ہے، کوئی ایک تولہ کم ہونے کے لیے تیار نہیں میرے بھائی۔ لیکن آخر کار مسلمانوں کے غلبے کے لیے جب بھی کوشش ہوگی اس موضوع پر سوچنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو متحد کیسے کیا جائے۔ تو متحد کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جدا جدا کیوں جدا ہوئے۔ اگر وہ سبب ہمیں مل گیا، ہم نے وہ وجہ تلاش کر لی، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے متحد کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمان سے جو دین اترا تھا نا، اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، اور کون لے کر آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، اب صرف 2 سوال ہیں ہر کام کے متعلق
उन दो सवालों पर परख लो कि वो काम उन दो सवालों के मुताबिक जवाब दुरुस्त है तो समझ लो कि वो मामला दुरुस्त है, और अगर उन दो सवालों का जवाब गलत है तो मामला गलत है, कभी बात दुरुस्त नहीं हो सकती। वो दो बातें क्या है? पहली बात है लीमा, दूसरी बात है कैफा। लीमा का क्या मतलब है? भाई तूने क्यों किया, किस लिए किया, किसकी खातिर किया, मकसद क्या था तेरा? पहला सवाल यह है कि तूने जो अमल किया किसकी खातिर किया? क्या अपने कबीले की खातिर, अपने वतन की खातिर, अपनी शुजाअत की खातिर, माल और दौलत की खातिर, इज्जत और नामूस की खातिर क्यों किया, या अल्लाह के लिए किया? बस पहला सवाल यह है, लीमा फालता, तूने ये काम क्यों किया? तो यहाँ इसके थोड़ा सा शरीक हो गया ना अल्लाह के साथ किसी और को भी कि फला मकसद के लिए भी किया तो वो फेल हो गया। सबसे पहला सवाल यह है कि क्यों किया, किस मकसद के लिए किया? तो अल्लाह ने फरमाया वाला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। क़यामत का दिन होगा, बड़े बड़े अमल, बड़े बड़े जिहाद भी होंगे, बड़ी बड़ी सखावतें होंगी, इल्म के पहाड़ होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे हमने जहन्नम को जलाना है, जलाया हुआ तो है ही अल्लाह ने, अब सबसे पहले आदमी इसमें फेंकने। भाई किसको फेंके? होता है ना इफ्तिताह होता है, इफ्तिताह करना है जहन्नम का, किनसे करें? ले आएंगे एक अल्लाह पाक हमें उन आलिमों में शामिल ना फरमाए, या अल्लाह हमें उनमें शामिल ना फरमाए। अल्लाह कहेगा मैंने तुझे बड़ा ज़हन दिया था, हाफिज़ा जबरदस्त था, बता तूने क्या किया? कहता मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, दिन रात मैं भागता रहा, मैंने हर जगह तबलीग की। अल्लाह फरमाएगा कज़ब, तूने गलत कहा, सिर्फ इसलिए तूने किया था, लोग है बड़ा आलिम है तो लोगों ने कह दिया अब हमारे पास तुम्हारे लिए क्या रखा है, चलो इसको जहन्नम में फेंक। फिर एक मुजाहिद, अल्लाह कहेगा बड़ी कुव्वत दी थी तुझको, फुर्ती थी, जिस्म के अंदर कुव्वत अता फरमाई थी, तो बता तूने क्या किया? उसने कहा जहां जहां से मौत मिलती थी ना मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि सब कुछ मैंने तेरी राह में लुटा दिया। अल्लाह कहेगा गलत कहता है तूने तो इसलिए किया था, लोग कहेंगे बहादुर है। तो गलत हदीस आपने सुनी है, सबसे पहले जहन्नम इन तीन आदमियों से भड़काई जाएगी, उस सखी ताजिर से, उस आलिम से जिसने दुनिया में इल्म का सिक्का जमा दिया था, और उस मुजाहिद से जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मगर पहले सवाल में फेल हो गया कि नीमा तूने क्यों किया? जवाब आना चाहिए था या अल्लाह सिर्फ तेरी खातिर किया। जब ये जवाब ना आया तो सारा का सारा 100% फेल। यहाँ 60%, 50%, 30% की बात ही नहीं है, या 100% पास है या 100% फेल। दूसरा सवाल क्या होगा? कई था, कैसे किया, किस तरह किया, किस तरीके पे किया, ये है मेरे भाइयों दूसरा सवाल। तो वो यहाँ पास होगा जो जवाब ये आएगा कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे की, बस जवाब ठीक। और अगर वो कहे या अल्लाह मैंने अपनी अकल के मुताबिक किया, तो वो सीधी लाइन जो अल्लाह की तरफ से आई इससे उतर गया। सीधी राह जो अल्लाह की तरफ से आई थी कि किसके पीछे लगना है, वाही के पीछे लगना है, मेरी अता करदा हिदायत के पीछे लगना है। उसने कहा या अल्लाह मैं अकल के पीछे लगा था, पटड़ी से उतर गया। वो जो कैफा का सवाल था तूने कैसे किया, तब मैंने कहा था कि तू अकल अपनी पे चल, तेरी अकल कुछ कहती है, दूसरे की अकल कुछ कहती है, तीसरे की अकल कुछ कहती है, तुम्हारी अकल जो है वो तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकती। तो तुम पहले सवाल भेजो। दूसरे ने कहा जनाब या अल्लाह मैंने बड़ा जबरदस्त एक चीज मुझे हासिल हो गई थी, मैंने उस पर अमल किया। अल्लाह फरमाएंगे क्या भाई तुझे क्या मिला था? कहता है मुझे कश्फ होता था, मैं अपने कश्फ के पीछे चला, या मैं अपने बुजुर्ग के कश्फ के पीछे चला, मैं जाने जानान के पीछे चला, मैं जनाब सोहरवर्दी के पीछे चला, चिश्ती के पीछे चला, निजामी के पीछे चला, कादरी के पीछे चला, नक्शबंदी के पीछे चला। ऐ शेख नक्शबंद नक्शे में बंद, नक्शे चुनाव में बंद के गोयंद नक्शबंद। अल्लाह का तेरा बेड़ा ही गर्क हो गया। मैंने कब कहा था नक्शबंद के पीछे चला, कब मैंने कहा था तुम अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे चला? मैंने किसी को पैगंबर बनाया था, किसी को मैंने रसूल बनाया था? फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। क्योंकि दूसरा सवाल जो तूने कैसे किया इसमें फेल हो गया। एक और कहेगा या अल्लाह
میں ان کے پیچھے چلا تھا جن کے پاس فرشتے آتے تھے وہ گناہ سے معصوم تھے، 12 تھے، 12 کے پیچھے چلا. جب میں تو کتاب پہ حاشیہ لکھتا تھا تو حاشیہ ختم کرتے ساتھ 12 لکھتا تھا، ضرور 12 وہاں بھی لکھتا تھا. اللہ کہے گا تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ معصوم ہے؟ میں نے تو نبوت ختم کر دی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت تو میں نے بند کر دی. اب تو کن کو لیے پھرتا ہے؟ فیل ہو گئے، کلیفہ کے سوال میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. تو نے محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کو کیوں اختیار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کب 12 پیغمبر بنائے تھے، کب 12 نبی میں نے بنائے تھے، تو کیوں ان کے پیچھے چلا؟ ایک اور اٹھے گا، وہ کہے گا کہ جی ذوق، میرا ذوق یہ کہتا تھا. بہرحال بات میں زیادہ پھیلاتا نہیں، اس کو کشم میں شامل کر لوں. کچھ بھی ہو وہ شخص سوال میں فیل ہو جائے گا جس کا جواب یہ نہ ہوا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا تھا. جو یہ جواب لائے گا انشاءاللہ العزیز وہ پاس ہو. دیکھو میرے بھائیوں، ایک سرکاری سکہ ہوتا ہے، جس طرح پاکستان کا سکہ ہے. ایک شخص اپنے پاس سے سکہ بنا لے، جعلی سکہ، کیا اس کی کوئی قدر و قیمت بازار میں ہوگی؟ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گرامی قدر فرزند ہیں. ایک شخص کو چھینک آئی، کہتا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب چھینک کے وقت کہنا کیا چاہیے تھا؟ الحمدللہ. اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. مشکات میں موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انا اقول السلام علی رسول اللہ. یہ بات درست ہے، السلام علی رسول اللہ میں بھی کہتا ہوں. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا. تمہارا یہ عمل غلط عمل ہے. اب السلام علی رسول اللہ برا کام ہے تو گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن چھینک کے وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے. اس طریقے پہ اگر نہ چلا تو پھر نئے نئے راستے ایجاد ہو جائیں گے. اسی طرح سے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دارمی میں حدیث ہے، مسجد میں گئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر، اور انہوں نے کھجوروں کی گٹلیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کہتا اتنی دفعہ تم پڑھو سبحان اللہ. کھجوروں کی گٹلیوں کا ذکر ہے یا نہیں اللہ مجھے معاف فرمائے. وہ کہتا تھا اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھو، وہ پڑھتے. پھر وہ کہتا اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو، وہ پڑھتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا، فرمانے لگے اللہ کے بندو، ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن موجود ہیں، ابھی تو آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، تم نے وہ دین چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا. اب سبحان اللہ والحمدللہ کو بری بات ہے، لیکن یہ حلقے بنا کر یہ گٹھلیاں پڑھنا گن گن کے ایک صاحب کاشن دے رہے ہیں، دوسرے اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ الگ حلقہ بن جائے گا، وہ الگ حلقہ بن جائے گا. مختلف حلقوں کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے جب کہا تو وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، ہمارا ارادہ تو اچھا ہی تھا، نیکی کا تھا. کہنے لگے بہت سے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں مگر ان کو ملتی نہیں ہے نیکی. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہتا یا رسول امام صاحب یہ بتائیے کہ عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو احرام کہاں سے باندھے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدینے کا آدمی احرام باندھے گا ذوالحلیفہ سے. وہ مدینہ سے تقریباً 5-6 میل کے پاس میں پڑا. تو اس نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ اگر تو کرے گا تو مجھے خطرہ ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا. اس نے کہا جی اس میں فتنہ کون سا، چند میل ہی تو زیادہ ہے، اس میں کون سی فتنے کی بات ہے.
ने कहा ढीलों की बात नहीं, बात यह है कि इसका मतलब ये निकलेगा कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल में पड़ गया है, नबी को पता नहीं चला कि यहाँ से चलना चाहिए, तुझे पता चला। ये मामूली बात नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया जो शख्स दीन में कोई नई बात निकालता है, दरअसल वो ये कहता है कि दीन में कमी थी, मैंने वो कमी पूरी कर दी। अब जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये तोहमत रखे, इस्लाम में उसका कितना कोई हिस्सा बाकी रह जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अब कोई चीज दीन में दाखिल नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो शख्स हमारे इस अमर में दीन में कोई चीज, देखिए ना, अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल कर दिया। दुनिया की नेमतें तो उतरती रहती हैं, नई से नई इजादात होती रहती हैं। मोटर इजाद हो गई, बस इजाद हो गई, हवाई जहाज इजाद हो गया, एटम इजाद हो गया। इकमाल अल्लाह ने दुनिया की नेमतों का नहीं फरमाया, इकमाल फरमाया है तो किस चीज का फरमाया है? दीन का इकमाल फरमाया है। इसलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि दीन मैंने मुकम्मल कर दिया है। दुनिया के मुतल्लक ये बात नहीं है, दुनिया की चीजों की इजाजत है। दुनिया की चीजों में असल क्या है? इबादत है, जायज है। जिससे पैगंबर मना कर दे रुक जाओ, जिससे पैगंबर मना नहीं करता खाओ पियो, तुम्हारे लिए हलाल है। कुल रअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिनहु हरामन हलाला। अल्लाह ने जो नेमतें नाज़िल की तुम्हारे लिए हलाल थी, तुम खुद साख्ता तरीके से किसी को हलाल बना रहे, किसी को हराम बना रहे, तुम्हें इसका क्या हक हासिल? तो मेरे भाइयों, दीन के मुताबिक अब कई लोग कहते हैं ये देखो जी बिजली भी बिदअत है, ये लाउड स्पीकर भी बिदअत है, ये मोटर भी बिदअत है, तुम्हारा तो वजूद ही बिदअत है। और नारा लगाने वाले कहते हैं नारा किलकिली। अल्लाह के बंदों को खुदा का खौफ करो, किस किस्म की बात करते हो? बात हो रही है किस बात की? दीन की। दीन की बात के अंदर दुनियावी नेमतों का जिक्र क्यों लाते हो तुम? मेरे भाइयों, दीन में अब कोई शख्स कोई चीज दाखिल करे, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। कई लोग एक बात कहते हैं, उसको जरा अच्छी तरह समझना। वो कहते हैं बिदअत कहते हैं बुरे काम को, जो अच्छा काम है एक बिदअत हसना है, एक बिदअत सय्यिआ है, एक बुरी बिदअत है, एक अच्छी बिदअत है। मेरे अजीज भाइयों, मुझे ये बताओ कि जब कोई शख्स दीन बनाएगा तो बुरे काम को दीन बना सकता है, जिना को दीन बना सकता है, चोरी को दीन बना सकता है, डाके को दीन बना सकता है। वो बनाएगा तो किसी नमाज को दीन बनाएगा, किसी रोजे को दीन बनाएगा, किसी जिक्र को दीन बनाएगा। जिस तरह उसने चीख के साथ अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह दिया। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अल्लाहु अकबर से अज़ान शुरू करते थे, ये कहां से शुरू करता है? सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। कभी शुरू करता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ान बताई वो अऊज़ु बिल्लाह से तो शुरू नहीं होती। तो मेरे भाइयों, बात ये है, एक आलिम का कौल मैंने पढ़ा, उसने कहा मेरा बेटा कहीं चोरों के एक ही मजलिस में फंस जाए, बदकारों की मजलिस में फंस जाए, शराबियों के मजलिस में फंस जाए, मुझे फिक्र तो है, आखिर मेरा फर्जंद है, खतरा है, मुझे सब कुछ है, लेकिन किसी बिदअती के फंदे में फंस जाए उसका मुझे इससे भी बढ़ के खतरा है। क्यों? इसलिए कि चोर है तो तौबा करेगा, उसे पता है मैं गलती कर रहा हूँ। अगर बदकार है तौबा करेगा, उसे पता है मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर वो वजीफा कर रहा है और ज़रबे लगा रहा है और जिक्र वो कर रहा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है, अब इसको उस बुरे काम से कौन पीछे हटाए? मेरे भाइयों, बहुत ही खतरनाक मसला है, जरा मेरी बात गौर से सुनना। दुश्मन कितना अय्यार है और कितना खतरनाक है। अल्लाह पाक ने, और जख्म खुर्दा दुश्मन है, जख्म खुर्दा, हमारी खातर, हमारे बाप की वजह से जन्नत से उसे निकलना पड़ा। कहता है मैं अब इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। इतना खतरनाक दुश्मन, और उसके साथ छुपा हुआ दुश्मन, नजर नहीं आता, छुप के वसवसे डालता है, बेड़ा गर्क करके छोड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह हमें भी कुछ मिल जाए, ये इतनी मेहनत करता है, हम गुनाहगार हैं, हवस भी है, खाने की ख्वाहिश भी है और जिनसी ख्वाहिश भी है और हिस्से हैं,
कई उम्मीदें हैं, कई वलवले हैं, शैतान उनको भड़काता है। हम क्या करें, कमजोर बंदे, खुलकल इंसान ज़ईफ़, किधर जाए, कहाँ जाए, क्या करे। कुछ हमें भी मिलना चाहिए। इसको छुपने की ताकत मिल गई, वसवसा डालने की ताकत मिल गई, क़यामत तक की मोहलत इसको मिल गई, हमें भी कुछ नसीब हो जाए, कुछ मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया हाँ, हमारे खजाने में क्या कमी, कोई कमी नहीं, बिल्कुल हम ऐसी नेमत देते हैं इसकी सारी मेहनत बर्बाद, जितनी जुस्तजू, जितनी कोशिश करेगा कुछ नहीं इसका कहा आ सकेगा। क्या है, अमन यअमल सूअन और यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। शैतान पांव के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक पूरा जोर लगाकर तुझसे बदकारी करवा ले, जिना करवा ले, शराब पिलवा ले, डाका मरवा ले, सब कुछ कत्ल करवा ले, तू सच्चे दिल से आकर कह दे या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, सब कुछ माफ कर, सब कुछ। और फिर देख मेरी नेमतों का ठिकाना, सिर्फ माफ नहीं करूंगा, जितने जिना थे, जितनी चोरियां थी, जितने कत्ल थे, जितने डाके थे, उतनी 7 मजीद नेकियां लगा। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। देखो अल्लाह का कोई हद है, अल्लाह के फजल की। चोरियां करता रहा, बदकारियां करता रहा, जिना करता रहा, हर गलती करता रहा, लेकिन झुक गया, कहता या अल्लाह बस गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा जा माफ। उस बदबख्त दुश्मन ने कहा अच्छा बच्चू तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसी जगह पे फंसाऊंगा कि तू निकल नहीं सकेगा। उसने कहा तुझे एक नेक काम बताता, सारी रात एक टांग पे खड़ा होकर तूने वजीफा करना है, इसमें जात का वजीफा करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, फला वजीफा करना है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। अब वो नेकी कर रहा है, अब इसको कौन तेरे भाइयों बचाए, ये कैसे तौबा करेगा। बिदअती को मेरे भाइयों तौबा नसीब नहीं होती, इसलिए बिदअत जो है दीन के अंदर नए काम, वो कबीरा गुनाहों से भी बुरा काम है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हौज पर कुछ लोग आएंगे, मैं उन्हें पहचानूंगा तो वो मुझे पहचानेंगे। मुसलमानों की शक्लें, वुजू से चेहरे चमकते, पर्दा डाल दिए, रुकावट हो जाएगी, फरिश्ते खींच के ले जाएंगे, मैं कहूंगा मेरे साथी है, तो कहेगा तुझे पता नहीं तेरे बाद इन्होंने दीन में क्या कई नई चीजें दाखिल कर दी थी, क्या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि चलो मेरे इश्क में की थी, और आशिक तो मादूर होता है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वसोहकन सोहकन लिमन गय्यरा बादी, जिसने मेरे बाद दीन को बदल दिया था मुझसे दूर ले जाओ। मेरा इससे क्या ताल्लुक है, जो मेरे नक्शे कदम पे नहीं चलता, जो मैंने बताया था कि इस तरह करना है उस तरह नहीं करता, अपनी मर्जी करता है, अपनी ख्वाहिश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौमें निकल आएंगी, ऐसी कौमें कि जिस तरह कुत्ते को हल्काओ चल जाता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, कुत्ते को हल्काओ चल जाता है, उसके रग रेशे, एक एक रेशे में वो हल्काओं का असर होता है, इसी तरह ऐसी कौमें निकल आएंगी कि उनके रगो रेशे में बिदअतें असर कर जाएंगी। ख्वाहिश परस्ती, अपने दिल के मसाइल, अपने ग्रंथ मसाइल, वो उनके रगो रेशे में असर कर जाएंगे। मेरे भाइयों, इसके लिए जरूरी क्या बात है, इसके लिए जरूरी बात यह है कि हम इस बात की तहकीक करें सबसे पहले कि जो अमल हम कर रहे हैं, पहला सवाल क्या था, किस लिए कर रहे हैं, दूसरा सवाल का ये है कि कैसे कर रहे हैं, क्या इस पे मोहर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या नहीं। नक़दुन अलैहि सिक्कतुन नबविय्यतुन ज़रबुल मदीनत अशरफुल बुल्दानी, ये ऐसी नकदी होनी चाहिए जिस पर मदीने की मोहर हो, न कूफे की मोहर हो, न बसरे की मोहर हो, न देवबंद की मोहर हो, न बरेली की मोहर हो, न बगदाद की मोहर हो, न किसी और शहर की मोहर हो, न अबू हनीफा की मोहर हो, न शाफी की मोहर हो, न अहमद बिन हंबल की मोहर हो, न इमाम मालिक की मोहर हो। मोहर हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, और किस टकसाल में खड़ा हुआ हो, मदीना की टकसाल में खड़ा हुआ। जब ये होगा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, मसला दुरुस्त हो जाएगा। अजीज भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, आप लोग भी तकरीरों की मार खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए मैं मुख्तसर करता हूँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि जरा जम के मेरी बात सुनना और याद रखोगे तो इंशाअल्लाह बेहद दफा होगा। अजीज भाइयों, बिदअत का पता कैसे चलता है कि ये काम बिदअत है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक होती रस्म, रस्म लोग करते हैं लेकिन उसको नेकी नहीं समझते। बिदअत वो होती है जिसको नेकी समझे, सवाब समझे। तो सबसे पहले तो ये देख ले आप
کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے، امت مسلمہ دیکھو کہاں چلی گئی۔ جن چیزوں سے منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیا۔ مثلا آپ کو پتہ چلا فلاں صحابی روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب اگر امت کا کوئی شخص کہے کہ جی فلاں بزرگ جو تھے 15 سال تک وہ مسلسل روزہ ہی رکھتے گئے، کبھی انہوں نے افطار ہی نہیں کیا، تو کیا خیال ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ ہرگز آپ کے نقش قدم، جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آپ اس کو نیکی کوئی شخص قرار دیتا ہے، یہ باغی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نیکی قیامت کے دن اس کو مروائے گی، جہنم میں پھینکوا دے گی۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے، ایک کام ایسا ہے کہ وہ نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی اور طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ہے نا، کہ یہ کام کرو تو یہ ثواب ہے، یہ سورت پڑھو تو یہ حاصل ہوگا، یہ سورت پڑھو تو یہ حاصل ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ سورت پڑھو گے تو یہ حاصل ہوگا، یہ وظیفہ کرو گے تو یہ حاصل ہوگا، یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت میں یہ درجہ مل جائے گا، کیا قیامت جنت کے درجے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بغیر معلوم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس کام کا یہ ثواب ہے وہ غلط نہیں کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں اس کی بتاتا ہوں۔ مثلا کتاب العیال ہے ابن ابی دنیا کی، اس میں عطا کا ذکر ہے۔ عطا نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ عقیقہ ہے تو عقیقے پہ ہم اونٹ نہ قربانی کر دے، اونٹ کر دے عقیقے پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں چھتریاں بتائی ہیں نا، اونٹ کر دے۔ سنت افضل ہے، سنت طریقے پہ چلو۔ دیکھو بکرا کرتا خرچہ بھی تھوڑا اور ثواب بھی زیادہ، اونٹ کیا ایک دینا اس کو آخری آنا، قیامت کے دن ہو سکتا ہے چھتر پڑے۔ کیا حاصل ہوا؟ بات یہ تجھے بتایا کس نے کہ تو اونٹ کر، تو یہ تلاش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز اس موقع پہ کی ہے۔ اپنی کتاب میں کہ جو شخص سورہ الإیلاف قریش پڑھے گا نا اس کو ہر مصیبت سے وہ امان میں رہے۔ ایک عالم نے اس پہ حاشیہ لکھا، اس نے کہا امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ سورہ الإیلاف پڑھنے سے انسان محفوظ رہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پناہ کے لیے۔ اب الإیلاف قریش جو تم کہتے ہو تمہیں جبریل علیہ السلام آ کے بتا گئے، تمہیں کس نے بتایا؟ میرے بھائیوں اس سے فرقے بنتے ہیں، بدعت جو ہے نا، ایک بات میری پلے باندھ لو، دنیا کے کسی خطے پہ چلے جاؤ، کسی خطے پہ سنت ایک ہوگی، اور بدعتیں جتنے شہروں میں جاؤ گے ہر شہر کی بدعت الگ، ہر گلی کی بدعت الگ، ہر ملک کی بدعت الگ، جو خود ساختہ جو خود بنانی ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے۔ اب دیکھو کئی مسجدوں میں نماز سے سلام پھیرتے ہی کئی آدمی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دیکھا بھائی کبھی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ بھائی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو۔ بھائی اس کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں حضرت تھانوی نے فرمایا، اعمال قرآنی میں فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ بھائی حضرت تھانوی کے پاس فرشتہ آتا تھا، اس کو کیسے پتا چلا؟ ہاں چلو کبھی کے نفس سے اگر نکالنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد اس طرح ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے۔ وہ جو سوال ہے نا کیوں، کس مقصد کے لیے، کیسے، کیا اس طرح نماز کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ عجیب عجیب کہتے خربوزے خریدنے ہیں نا، خربوزے اعمال قرآن میں لکھا ہوا، تو میٹھے خربوزے پہ ہاتھ پڑے، پہلے پڑھو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میٹھا خربوزہ ہاتھ آ جائے گا۔ بھائی تجھے اللہ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ واللہ مخرج ما تکتمون کہو گے
तो खरबूजा मीठा हाथ में आ जाएगा, तुम्हें किस तरह? अच्छा फिर देखो, गंजुल अर्श है, एक दुआ गंजुल अर्श, सुनिए गंजुल अर्श, किसी मस्जिद में चले जाओ, हर मस्जिद के अंदर अल्लाह कहीं ऐदनामा है, दरूद माही है, दरूद जो गंजुल एक है दरूद ताज है, एक दुआ गंजुल अर्श है, एक हफ्ताकल है, एक ऐदनामा है। हर इलाके के अलग अलग उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माशाअल्लाह अल्लाह ताला से पूछ कर, जैसे अल्लाह की गोद में बैठ कर ये भाई खेले हुए हैं और जो करते हैं पूछ के करते हैं। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि जो शख्स ये पढ़े उसको सवाब 70,000 वलियों का, 70,000 नबियों का। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। हमारी मस्जिदों में कई लोग बड़ा शोर डालते हैं, कहते हैं नामूस से सहाबा पर उठी जो नजर मैली तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और तुम्हारी किसी मस्जिद में चले जाओ, ये पड़े हुए हैं कोट बिदअत के, और उनमें लिखा हुआ कि ये पढ़ लोगे ना 70,000 वलियों, 70,000 शहीदों, 70,000 पैगंबरों का सवाब तुम्हें मिलता है। मुझे बताओ मेरे भाइयों, अब इसको कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, तहज्जुद पढ़ने की क्या जरूरत है, शहादत हासिल करने की क्या जरूरत है? 70,000 के शहीद का सवाब तो एक मिनट में उसको बगैर कुछ किए हुए मिलता। और फिर नाम पे गौर करो, गंजुल अर्श, गंज फारसी का लफ्ज है, अर्श जो है वो अरबी का लफ्ज। सो खुलासा मेरी बात का ये है, कोई भी चीज हो, कोई चीज हो जिसका सवाब अल्लाह के बताने से मालूम हो सकता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से मालूम हो सकता है। कोई शख्स कहता है कि जो शख्स ये अमल करेगा उसको ये अजर होगा, झूठा है, बिदअती है, उम्मत को गुमराह करने वाला। अच्छा भाई, कुछ हमारे भाई निकले हैं, उनका एक तरीका बड़ा शानदार है, मैंने उसका तजुर्बा किया। वो ये है कि वो तकरीर में ये कभी नहीं कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते बुजुर्गों से सुना कि जो शख्स ये अमल करे उसको ये सवाब मिलता है। बुजुर्गों से सुना कि जो शख्स ये अमल करे उसको 69 करोड़ सवाब मिलता है। 49 करोड़ भाई, इस्लाह होगी, 49 करोड़ का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, तुम्हें कैसे पता चला? कहते जी बुजुर्गों से सुना। अच्छा, कहते हमने कहा भी तू नबी का नाम क्यों नहीं लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमने कहा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मैंने नाम ले दिया हो सकता गलत हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे जिम्मे वो बात लगाए जो मैंने नहीं कही तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो हम इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते। मेरे भाइयों, बात बारीक है, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तुमने नबी का नाम तो ना लिया, लेकिन जब तुमने ये कहा कि इस अमल का सवाब ये होता है, तो सवाब बताने वाला कौन है? क्या तुम सवाब बताने की ताकत रखते हो? तुम्हें सवाब का पता है? सवाब बताने वाला या मोहम्मद रसूलुल्लाह है या अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और अल्लाह जल्ला जलालुहु के अलावा कौन बता सकता है? तुम लाख छुपाओ अपने आप को, लाख छुपाओ अपने आप को। जब तुमने ये किया कि इस अमल का सवाब ये है, वो साफ बोहतान लगा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला जलालुहु पर तुमने बोहतान लगा दिया। बच के नहीं जा सकते। मैंने नबी का नाम नहीं लिया था। मैंने कब कहा था कि अल्लाह ने ये फरमाया है? ना मैंने अल्लाह का नाम लिया था, ना मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया था। भाई बड़े भोले हो, तुमने ये क्यों नहीं ये कहा था कि नहीं सवाब इतना होता है, सवाब सवाब। तुम्हें सवाब का पता कैसे चला? तुम्हें सवाब किसने बताया था? तुम्हारा ये लफ्ज ये जिम्मे लगेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह पाक के बोहतान लगाने से तुम बच नहीं सकते। तो अजीज भाइयों, इसी तरीके से एक और बड़ा पढ़ते हैं नमाज के बाद ना, आंखों पे फेरते, आंखों पे क्या पढ़ते हो? कहते जी हाँ पढ़ते हैं, फकशफना अनका गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। भाइयों, ये सुनी है कभी कि नहीं सुनी? मैंने बहुत लोग देखे, उधर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उधर आंखों में फूंके मारते हैं। अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि बताया नहीं। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी बातें बताई। वमत्तिअना बिअस्माइना वअबसारिना वक़ुव्वातिना मा अहयैतना वजअलहु वारिसा मिन्ना। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐ अल्लाह, हमें फायदा दे हमारे कानों के साथ, हमारी आंखों के साथ, हमारी कुव्वतों के साथ। जब तक तू हमें जिंदा रखे और हम मर भी जाए तो उसके बाद भी कुव्वतें वजअलहु वारिसा मिन्ना, बाद में भी ये कुव्वतें बाकी थी। शेख अलबानी हफिज़हुल्लाह कोई 2 साल पहले 4थी शादी उन्होंने की 90 साल की उम्र में। कि अब 90 साल की उम्र हो गई, अल्लाह पाक ने एक बेटा भी दे दिया,
ان کا داماد پچھلے دنوں یہاں آیا تھا, اس نے کہا کہ شیخ فرماتے ہیں کہ میری قوت کا راز یہ دعا پڑھنا ہے, اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک, اور اس میں متعنا باسماعنا و ابصارنا. کدھر پھرتے ہو فجمنا ان کا کتاب. آیت میں غور تو کرو, بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے قیامت کے دن اللہ مجرم کو فرمائے گا کہ تو دنیا میں اندھا تھا, تیرے کی جہنم نظر آ رہی ہے نہیں, فکشفنا عنک غطاءک, تیری آنکھوں کے پردے اتار دیے ہیں, فبصرک اليوم حدید, نظر تیری تیز ہے, دیکھ جو تجھے نظر نہیں آتا اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں. ہمارے مولوی نے کہا حدید تیز, نظر تیز تیز وظیفہ شروع کر. اللہ تجھے ہدایت دے, تو نبی کے نقش قدم پہ چل. کیوں وظیفے ایجاد کرتا ہے, کیوں نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے؟ کوئی آیت پڑھ رہا ہے, کوئی آیت پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں, بدعات کا ایک اور دروازہ وہ ہے تقلید, غیروں کی تقلید, غیر مسلموں کی تقلید, ان کے نقش قدم پہ چلنا. یہ ایسی شامت ہے, ایسی شامت ہے, ریس نقل ایسی شامت ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے انسان مکھی پہ مکھی بارتا چلا جاتا ہے, سوچتا بھی نہیں. دیکھیے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات دی, موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر بڑی قربانیاں دی, اور تھے یہ یہودی بنی اسرائیل پیسے کے بڑے پیر تھے, اتنے پیر تھے کہ جو سونا آتا نا سارا سمیٹ کے ساتھ لے آئے. جتنا سونا آتا ہے تم نے ہجرت کرنی ہے, نکلنا ہے, کہتے ہیں سونا کہیں سے ادارا, بعض تفسیروں میں لکھا ادارا ہی مانگ لیا, اس سے کچھ مانگ لیا, کچھ اس سے مانگ لیا, جتنا سونا ہاتھ آ سکتا تھا سب انہوں نے قبول کر لیا. اب جب ایک جگہ پہ پہنچے تو کچھ لوگوں کو دیکھا یعکفون علی اصنام لہم, وہ بتوں پہ جناب نا عبادت کر رہے ہیں. آستانہ بنا, آستانہ عالیہ, فلانا 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 آستانہ عالیہ انہوں نے بنایا. کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, موسیٰ ہمیں بھی یہ الہ بنا دیجئے, یہ ان کا الہ ہے, یہ گلے میں ٹائی باندھتے ہیں, ہمیں بھی تو باندھنی چاہیے. تو وہ تو صلیب کے پجاری ہیں, تو گلے میں صلیب کیوں ڈالتے ہیں؟ نہیں نہیں, ہمارا ایک جو وزیر اعظم بنا پہلے دن کی تصویر ہے, اتنی لمبی ٹائی اس نے گلے میں لٹکائی ہے. اس سے پوچھو یہ ٹائی تجھے کیا دودھ دیتی ہے, تجھے گرمی سے بچاتی ہے, تجھے سردی سے بچاتی ہے, کچھ پیسہ تجھے ملتا ہے. نقل کرنے والے کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے, کہتے ہیں نقل کے لیے عقل. بات نقل کے لیے عقل کی کیا ضرورت, نقل کرتا ہی وہ بیوقوف ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو, کیوں غیروں کے طریقے پہ چلتے. اچھا بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جو تھا نا ان کو دیکھ بیٹھے نا کہ یہ ان کے سامنے, ان کے ساتھ یہ بھی بڑی مصیبت ہے. ذوق حضور در جہاں رسم صنم کری نہاد, عشق فریب بھی نہت جانے امیدوار. اقبال کہتا ہے کہ یہ جو خیال ہے نا کہ سامنے ہونا, سامنے پھر میں سجدہ کروں, اللہ کو نظر نہیں آتا, کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے, تو سامنے آ میں سجدہ کروں, پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا, تو اور کہیں میں اور کہیں پھر تجھ کو سجدہ کروں. یہ پت پرستوں کی یہ جو ہے نا مزاج ہے, ان کی طبیعت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون, بڑے بیوقوف ہو, جاہل ہو تم, تمہیں سمجھ ہی کوئی نہیں. جھڑک دیا. موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے طور پر گئے, سامنے نے کہا لاؤ نکالو سونا. وہ ہرس کے مارے ہوئے سونے کے پجاری. جب آئی نا بات غیروں کی تقلید کی کہ ان جیسے ہم بن جائیں گے, فوراً سارا سونا نکال کے دے دیں, سارا سونا نکال. دیکھو کس طرح غیروں کی نقل کے وقت عقل کا ستیہ ناش کس طرح ہوتا ہے. جس کے پجاری تھے, پوجتے تھے, جس سونے کو پوجتے تھے, وہ بچڑا بنانے کے لیے, غیروں کی نقل کے لیے وہ دے دیا, اس نے بچڑا بنا کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے پوجنا شروع کر. مجھے یہ بتاؤ, یہ ہمارے نوجوان لڑکے جو انہوں نے قمیض شرٹ پہنی ہوتی یہاں تک, نیچے سے ننگا ہوتا ہے, اور وہ یہ ٹیڑھا سا چیز نکال کر 2-4 قدم جب دوڑ کے چلتے ہیں اور اس طرح سر مارتے ہیں, اس میں کوئی خوبی کی بات ہے؟ ان کو کہو اس کی دلیل پیش کرو, واللہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے سوائے اس کے. بھائیو یہ کلام سن لیں, پروین بی بی کوئی شخص, کوئی عورت اپنے سر پہ اس طرح پھروا دے, کیا خیال ہے؟ کوئی عورت اپنے سر پہ اس طرح پھروا دے, اس کو لعنتیں اور پھٹکاریں پڑیں گی کہ نہیں پڑیں گی؟ کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ والی عورتیں, اس کے پاس بیٹھنے والی, اس کی بہنیں, اس کی عزیزائیں, اس کو لعنت پھٹکار
डालेंगी कि नहीं डालेंगी? डालेंगी ना। अच्छा, जिस तरह औरत के लिए जीनत सर के बाल है, मर्द के लिए दाढ़ी जीनत है कि नहीं है ना? तो दाढ़ी मुड़ाते कुछ भी नहीं होता। बात यह है उनको वो एहसास ही खत्म हो गया। क्या दलील है दाढ़ी मुड़ाने की? कि अंग्रेज मुड़ाते। मेरे भाइयों, शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियार करो। क्यों गैरों के तरीके पर चलते हो? पहचान ही तुमने खत्म कर दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, ये काम छोड़ दो। वल्लाह रोज तुम पैसे भी खर्च करते हो और लानतें भी लेते हो। मैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु मुतशब्बिहीन बिन्निसा, जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते मर्द, उन पे लानत है। जो औरतें मर्दों की मुशाबत औरत ट्रेंड कराएगी वो भी मलऊन है, मर्द दाढ़ी मुड़ाएगा वो भी मलऊन है। वो औरतों की शक्ल इख्तियार कर रहा है और वो औरत मर्दों की शक्ल इख्तियार कर रही है। मेरे भाइयों, बहुत से काम है, हम बहुत से काम है जो हमने नेकी समझ के शुरू किए हुए हैं। अब देखिए, मीलाद है, मीलाद बड़ा सवाब करते हैं कि जी आज तो सबको खुशी है, सिर्फ शैतान को खुशी नहीं, बाकी सब आज खुशी से आज ईद मना रहे हैं। मेरे भाइयों, दलील कोई नहीं, कोई दलील नहीं। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाना। ये 12 महीने है ना, ये 12 महीने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आए। मुहर्रम आता था कि नहीं आता था? मुहर्रम की 10 तारीख को क्या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस निकालते थे? कोई घोड़ा निकालते थे, कोई ताजिया निकालते थे, कोई जिंजीर जनी करते थे, कोई वो आग पे रक्स करते थे। ये जो कुछ करते हैं ये ठीक है, अपने आप को कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, खुश रहे जितने मर्जी खुश हो। क्या हम मौला अली के परवाने हैं? ठीक है, मौला अली के परवाने बनते फिरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार से तुम्हें निकाल दिया गया। क्यों? इसलिए कि मुहर्रम की जब 10 तारीख होती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोजा रखते थे। फिर फरमाया मैं 9 का रोजा रखूंगा। ये काम तो करते ही नहीं थे जो तुम करते थे। और उसके बाद सफर आ गया, ये 4 शंबा है आखिरी, गुस्ल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो गुस्ल करना अगर साबित भी है तो बीमार होने की वजह से, ये तंदुरुस्ती गुस्ल करते चले जा रहे हैं। देखो मेरे भाइयों, बात पे गौर करना। इनकी आशिकी बड़ी सस्ती है, आसान है सिलसिला। कहते जनाब उवैस रहमहुल्लाह ने सुना कि जंगे बदर में, जंगे उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया। उसने कहा अच्छा, मेरे महबूब का दांत शहीद हो गया। उसने एक दांत निकाल दिया। फिर सोचा कि हो सकता है कोई दूसरा दांत, तो फिर दूसरा निकाल दिया। 32 के 32 दांत उसने निकाल दिए। सुनने वाले कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदों को अकल से काम लिया करो। अल्लाह की बड़ी नेमत है अकल के इस्तेमाल की, ये जगह है। मसले गढ़ना अकल का काम नहीं है, अकल का काम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना। आपने दांत जो तोड़वाया, शहीद करवाया, तो घर बैठकर जमूर से पिटवा दिया था। जंग में लड़कर निकलो मैदान जंग में। तो मेरे भाइयों, अब आप देखें, बात को जरा तफसील से देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या औरतों को बच्चे पैदा होते थे कि नहीं होते थे? होते थे ना। तो क्या ऐसा था कि जिसको बच्चा पैदा हो वो अपनी जात में कुल्हाड़ा ला के रख दे? लोहे का जंदरा ला के रख देते हैं। ये जंदरा तुझे क्या करेगा? अल्लाह की बंदी, तुझे अल्लाह हिदायत अता फरमाया, ये जंदरा तुझे नहीं बचा सकता। ना तुझे बीमारी से बचा सकता है, ना तेरे बच्चे को बचा सकता है। बच्चा पैदा हो गया तो शरीर के जनाब वो पत्ते लगा दिए। शरीर के पत्ते तुझे क्या करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा जरा बड़ा हुआ, खतना होना जी, खतने के वक्त दावत करो, लोगों को बुलाओ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खतने नहीं होते थे? ये बिदअत और खुराफात। फिर हर एक अलग अलग तरीका है, किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई तरीका है। इसी तरीके से शादी का मसला है, इसी तरीके से गम का मसला है। गम के मौके पर ये तीजा है, साता है, 40वां है, बरसी है, और ये सारी की सारी चीजें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं बताई। सिर्फ हम गैरों की नक्काली में, गैरों की नक्काली में। अब ये जो औरतें बेपर्दा फिरती हैं, हमारी अजीज बहनें,
अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी है, बड़ी इज्जत। मेरी एक हमशीरा वो बुरका पहनती थी देसी, तो बस में चढ़ी, एक और औरत थी वो बूढ़ी थी, मेरी हमशीरा जवान थी, नौजवान बिल्कुल। ड्राइवर उसको कहता है अम्मा जान आप यहाँ बैठ जाए, और उस बूढ़ी को कहता है बाजी आप थोड़ी देर के लिए खड़ी रहे। उसको कहता है बाजी थोड़ी देर के लिए खड़ी गए, उसको कहता है अम्मा यहाँ बैठ। देखो सुभान अल्लाह ने कैसी इज्जत इसमें रखी हुई है। भाइयों ख्याल भी तो करो, कोई तुम्हारे पीछे शिकारी नहीं लगेगा, तुम्हारी बहन के पीछे, तुम्हारी बीवी के पीछे, तुम्हारी बेटी के पीछे कोई उसकी इज्जत की तरफ नहीं देखेगा, तुम्हारी इज्जत महफूज होगी अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पूछो जो बेपर्दा फिरती है तेरे पास दलील क्या है? कोई दलील नहीं सिवाय इसके कि हिंदुओं की औरतें नंगी फिरती हैं, अंग्रेजों की औरतें नंगी फिरती हैं, फ्रांसीसियों की, गैरों की, सिखनियां जो है वो बेपर्दा फिरती, इसलिए मुझे भी अच्छा दिखाई। एक औरत अच्छी देख थी, अल्लाह ताला उसको और नेकी की तौफीक दे, पर्दा नहीं करती थी। मैंने कहा पर्दा, मैंने तो खैर बात नहीं, दूसरी हमारी अजीजाओं ने उससे बात की, तो पर्दा क्यों नहीं करती? कहती मुझे शर्म आती पर्दा करते हुए। माशाअल्लाह, देखो शर्म बात क्या है असल में, वो जो मैंने पहले बात की है कि जब गैरों की नक्काली इंसान करता है तो शर्म वाली बात बेशर्मी हो जाती है, बेशर्मी वाली बात शर्म हो जाती है। अब देखो पर्दा करना शर्म की बात है कि बेपर्दा रहना शर्म की बात है? बेपर्दा रहना शर्म की बात है। अब कई औरतें आप भी पूछेंगे ना, मसलन आप अपनी ममानी को कहें, अपनी मामी को कि मामी जान आपका मुझसे पर्दा है, तो उत्तर बनु शर्म आ। अल्लाह की बंदी है, इसमें शर्म की बात पर्दा करने में है कि ना करने में? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे लग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्म वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तू क्यों गैरों के पीछे लगती है, हिंदुओं के पीछे लगती है और गैर मुस्लिमों के पीछे लगती है? तो इस तरह मेरे भाइयों बहुत सी चीजें मुसलमानों में ऐसी दाखिल हो गई हैं जिनकी कोई दलील इसके अलावा नहीं है। अब देखो एक आदमी मर गया, असेंबली लगी मुसलमानों की, सेनेट है, मजलिस है, कहते 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। उसको पूछो तेरे इस 1 मिनट की खामोशी से मैयत को दूध का प्याला मिल गया है, इससे उसे क्या हासिल हुआ? तुझे उससे क्या हासिल हुआ? इसका फायदा क्या है? तो कहेगा फायदा शायद कुछ नहीं, अंग्रेज इस तरह करते हैं तो हम भी इस तरह करते हैं। बेशुमार चीजें मेरे भाइयों, मुजाहिदीन में अल्लाह ने ये कुव्वत रखी है जिसका पता चल जाए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, कहते नहीं करना, सारे छोड़ते हैं, छोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, जमाल मुस्तफा जाए, कौल मुस्तफा जाए, सिराये दीगरा मादम जमाल यार माने गर्ददा अगयार आशिकरा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद अब किसी की बात का क्या दखल है? किसी का नमूना हमारे लिए कोई नमूना ही नहीं है। अजीज भाइयों, इसके अलावा बिदअत का एक बहुत बड़ा दरवाजा, मैं इंशाअल्लाह 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, 9:15 बजे में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बिदअत का एक बहुत बड़ा दरवाजा ज़ईफ और मौजू अहादीस, ज़ईफ और मौजू अहादीस। कहते भाई तू अनबी क्यों है, तू मालवी क्यों है, शाफी क्यों है? कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इख्तिलाफ रहमत है, माशाअल्लाह। इख्तिलाफ रहमत है तो फिर इत्तिफाक तो ज़हमत हो गया ना इस उम्मत का, कहीं ऐसा ना हो ये उम्मत इकट्ठी हो जाए। झूठ बांधा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये बहुत बड़ा एक दरवाजा है। और मौलवियों ने इस दरवाजे को कायम रखने के लिए, अपने झूठ छुपाने के लिए, अपना खोटा सिक्का चलाने के लिए क्या चोर दरवाजा रखा हुआ? कहते हैं फज़ाइल आमाल में ज़ईफ हदीस काबिल कबूल होती है। अल्लाह के बंदे इस बात को दुरुस्त भी मान ले तो इसका मतलब ही तू नहीं समझा। इसका मतलब ये थोड़ा है कि फजीलत वाले अमाल गढ़ गढ़ के शरीयत में शामिल करता जा। इसका मतलब तो यह है जो अमल साबित हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान मजीद से, सही हदीस से, उसकी कोई फजीलत की हदीस अगर कुछ कमजोर भी आ जाए तो चलो बयान कर लो। जिन्होंने ये बात कही उनका मतलब ये था, बात ये भी गलत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी, उसको क्यों आप बयान करते हैं? तो इसलिए एक दरवाजा ये है जिससे कि बिदअत दाखिल होती है। फिर मेरे भाइयों, बिदअत का एक और दरवाजा है, वो मोटी सी बात है, उसको अच्छी तरह याद रखना, इंशाअल्लाह आपको बहुत नफा देगी। वो ये है, एक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तो है, मसलन नमाज साबित है,
مثلا अजान साबित है, مثلا दुरूद शरीफ साबित है, ये सब साबित है. लेकिन उस जगह पर जगह एक खास कर लेनी, एक वक्त खास कर लेना. भाई सदका ठीक है, जुमेरात को सदका करूंगा, जुमेरात. एक बुजुर्ग ने लिख दिया कि जुमेरात को वाकई रूह आते हैं. रिवायत अगरचे ज़ईफ है मगर अमल कर लो तो अच्छी बात है. अल्लाह के बंदे जब रिवायत साबित नहीं है तो अमल कर लो तो कैसे अच्छी बात है. जगह वक्त मुकर्रर. अब देखिए नमाज है, नमाज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार करते हैं. लेकिन कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जरूरत होती थी तो हाथ उठा के दुआ भी कर लेते थे. लेकिन अब नमाज के बाद के वक्त को खास कर लेना है कि सब भाई बैठे हुए हैं, इमाम साहब भी हाथ उठाए, मुक्तदी भी हाथ उठाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया. मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी है, हालांकि उन्होंने साफ लिखा फैजुल बारी में भी और इसी तरह अल-मुर्शदी में भी ने कहा ये जो तरीका चला हुआ है मुसलमानों में नमाज के बाद सब मिल के हाथ उठाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं. अब लोग क्या करते, देखो दुआ का मुनकर. एक साहब पिछले दिनों फौत हुए, मैं उनकी विवाह कुर्सी के लिए गया, उन्होंने कहा भाई दुआ करना मेरे लिए. वैसे तुम लोग तो दुआ के मुनकर हो. इनकार क्या है? इनकार ये है कि हम वो तरीका इख्तियार नहीं करते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लोगों ने इख्तियार किया हुआ. अब देखिए जगह एक मुकर्रर कर लेता है. सिर्फ 3 जगह है जिनमें तकद्दुस है, जिनके लिए खास तौर पर जा सकते हैं. कौन सी? एक मक्का है, एक मदीना है और एक बैतुल मक़दस है. मरकज तैयबा बिल्कुल नहीं. इस जगह में कोई समझे इस जगह में खूबी है, वल्लाह कोई खूबी इस जगह में नहीं. और अगर कोई कहे कि रायविंड में जाते हैं तो दुआएं कबूल होती है, ये भी पटड़ी से उखड़ा हुआ है. रायविंड में कोई खूबी नहीं. और अजमेर से चले एक साथ, लाहौर में आके उन्होंने इत्तिकाफ किया कब्र के ऊपर. भूल गया बेचारे को, समझ ही नहीं आई ये जगह खास करनी इस तरीके से. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ. इसी तरीके से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम रखा है उसको खास करना. मसलन देखिए साहब, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफा पढ़ना है. अब अगर कोई शख्स सुभान अल्लाह को 35 दफा पढ़े या वो 1.25 लाख की तस्बीह करे तो क्या ख्याल है, 33 दफा का सवाब ज्यादा है कि 1.25 लाख का सवाब ज्यादा है? क्या ख्याल है 33 दफा का? कभी देखे ये जो बक्से खुलते हैं नंबरों से खुलते हैं, नंबरों से बक्से खुलते हैं. वो नंबर अगर मसलन तीनों ही सिफरे है ना, तीनों सिफरे पे खुलते हैं ना, तो सिफरों पे खुलेंगे. वैसे उसको तुम 999 बना लो, 999 पे नहीं खुलेगा, सिफर 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 पे खुलेगा. जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अदद पे रहो. और जिसको मुकर्रर नहीं किया अपने पास से मुकर्रर मत करो. अगर मुकर्रर करोगे उसको दीन बनाओगे. जिस तरह ये किताबें बड़ी बड़ी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से तुम उतर जाओ. तो इसलिए मेरे भाइयों, खुलासा मेरी बात का ये है, जो काम करो दिल को टटोल लो, कहीं इसमें किसी गैर का दखल तो नहीं हो गया. अगर वो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल है, पहली अल्हम्दुलिल्लाह ये करो. दूसरा फिर देखो, पूछो, आलमों से पूछना पड़ेगा, मुताला करना पड़ेगा. चाहे लोग तो हर गलत काम को कहेंगे ये सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है. पूरी तहकीक करो, हदीस सही है, कुरान की आयत है, ये अमल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है तो थोड़ा भी बहुत है, नहीं तो खा उल्टे लटक जाओ उल्लू की तरह, खा 12 साल कुएं में लटकते रहो, खा एक टांग पे खड़े रहो, खा करोड़ दफा तुम दुरूद शरीफ को सास्ता पढ़ते रहो. क़यामत के दिन बजाय फायदा होने के उल्टे जूते पड़ेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से निकाल दिए जाओगे. हर अमल से पहले खूब अच्छी तरह देख लो, कुरान में यह आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो करो, नहीं साबित तो कहो माँ बखैर शुमा बसलामत, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कुरान मजीद जय्यद उलमाए किराम की तकारीर नित नए जहादी तरानों के वॉल्यूम्स साफ और बेहतरीन MPX साउंड फिल्टर पर पाकिस्तान भर में बेहतरीन ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग और सीडीज का मरकज. बराह राबिता दारुल अंदलस मरकजुल कादसिया 4 लेक रोड चुबुर्जी चौक लाहौर. फोन 72300549. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.